Hello, my darling buddy. शिवा, How are you, मेरी जान? मैं बहुत अच्छी हूँ. How beautiful are you looking? Look who's talking. Everybody's been looking at that creative जो मैंने तुम्हारा और मेरा बनाया, and everybody's like, God, is she getting younger? What's going on? What's going on? You've lost so much weight and you're looking so fit, yaar. I had to, Shiba. I have friends like you who are like fit, who are roaring, who are growing younger. I better look good to compete with my friends. As if. तो मैं सबको बता रही थी कि तुम्हारी मेरी दोस्ती बहुत पुरानी है और हम इतना मिलते नहीं, लेकिन जब हम मिलते हैं वो पुराना प्यार दोबारा we just pick up where we left off, है ना? Absolutely. Do you remember when we met? How we met? I have vague recollections that we met at Prithvi. हम उस टाइम पृथ्वी बहुत बैठते थे तुम और मैं. You were doing a lot of theatre at that time. And I remember having tons of Irish coffee with you, sitting there in that beautiful Prithvi ka compound and having coffee pe coffee pe coffee pe coffee, है ना? You have been a generous audience. I think मैं मकरंद के साथ कोई नाटक कर रही थी, तो आप लोगों ने मेरे नाटक देखे हैं, आपने बहुत सारा हौसला बढ़ाया है, and then you have pampered me so many times at your place, at your parties, and रात भर हम दोनों बैठ के गप्पे मारते रहते थे. एंड आई रिमेम्बर लाइक लिटरली सेंडिंग यू होम व्हेन द डे वुड ब्रेक. जब पौ फटे होती थी तुम अपनी गाड़ी में ऐसे सोते सोते निकल जाती थी कि बस शिवा भी नींद आ रही, मैं चली. You have set me in Mumbai in the sense. मुझे इतने glamorous, fashionable, rich लोग मालूम नहीं थे. You are my guide. आई एम वेरी रिच इन फ्रेंड्स. ये एक बात मैं खुद की तारीफ करूंगी कि शायद मेरी कमाई मेरी जिंदगी की मेरे दोस्त हैं. आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड टू मीट वंडरफुल पीपल लाइक यू. हो वी डोंट कॉल एवरी डे एंड वी डोंट चेक क्या करिए, बट व्हेनेवर वी कैच अप वी आर एब्सोल्युटली लाइक देयर, है ना? शिबा, एक तो मुझे सबसे अच्छी बात तुम्हारी ये लगती है कि यू आर विद द टाइम्स, यू आर विद द ट्रेंड्स, यू आर विद द टेक्नोलॉजी. तुमने मुझे बताया था कि स्नैपचैट क्या होता है. इफ यू रिमेम्बर, माय डॉटर वाज रियली यंग एंड वी मेट एट द क्लब जुहू एंड यू टोल्ड मी कि स्नैपचैट पता नहीं है सोनाली, एंड आई वाज लाइक फिर से क्लास ज्वाइन करने का समय आ गया है. एंड बट आई एम सो अमेज्ड दैट you are with the technology, you are so friendly with the social media and with your fitness most of all. And as you said Shiba, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बैंक में चीजें होती है ना, तो मेरे पास सारे दोस्त हैं लेकिन मेरे पास शिबा है बॉस. ऐसा मैं बोल सकती हूँ. धन्यवाद धन्यवाद. सो सिंस आपने फिटनेस की बात की, लेट्स बिगिन विद द फिटनेस पार्ट ऑफ योर लाइफ. फिल्मों पे तो हम आएंगे ही आएंगे ऑब्वियसली. you're looking damn good. मतलब ये lockdown, this 6 months that we've all been shut down, I know you have been too because of your choti baby. How have you kept yourself fit? We're reading the comments, guys. 1 second, and we're going to call out to all of you at some point. So give us a minute. We're going to speak a little, and then we're going to give shout outs to all of you. तो मुझे बताइए fit कैसे रही आप इस दौरान? एक तो है कि एक पहली बात यह है कि अगर आपके दोस्त इतने खुद को मेंटेन करते हैं तो उनके साथ कभी मिलने के लिए तो थोड़ा डिजर्विंग फिगर रखनी पड़ती है ना. That is the first reason. कभी ऐसा ना हो जाए कि अरे आ गई, आइए भाभी जी, और बाकी सारे दोस्त शिवा जैसी है. That is the first reason. And secondly, I feel that couple of years back, after my daughter was born, I still remember that point when I decided that I need to be fit. So she was about 1.5 years old, and I had taken her to the zoo with my husband, and my husband was holding her in his arms, and he said, "Chalo, we will go ahead, we will take a round." That was our routine. And Baikala Zoo, by the way, they have a fabulous botanical garden. So मैंने नचिकेत से कहा था कि नचिकेत तुम कावेरी को लेके जाओ ना, that 20-minute walk that you complete with her, I'll sit here on the bench. And he looked at me and he was a little surprised and he said, sure, I will take her ahead.
he went, and those 20 minutes I think turned my life around. I just felt that what is my age, what am I doing, I am getting tired, I'm not feeling like walking with my family because maybe I am on the verge of getting overweight. Enough of being happy about having things in your life कि मुझे चाहिए थी, मेरी बेटी आ गई है लाइफ में, मुझे बेटी ही चाहिए थी, लाइफ सेट लग रही है, काम भी शुरू हो गया है. तो दैट टाइम आई जस्ट रियलाइज कि मुझे ये चेंज करना पड़ेगा. मुझे जाके ऐसी एजेड लड़की नहीं बनना है जो कि अपने 40s में 60s की बन गई है. हाँ. तो मैंने बहुत सोचा और मेरी लाइफ कोच है डॉक्टर सरिता डावरे, शी इज अ डियर फ्रेंड, और मैंने उनसे कंसल्ट किया कि डॉक्टर मुझे ऐसा लग रहा है तो डाइट और वर्कआउट के साथ वो थोड़ा आपका काउंसलिंग भी करती हैं. और शी सेड दैट यू नो द मोमेंट यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट यू नीड टू बी फिट, यू स्टार्टेड बिकमिंग फिटर. हाँ. तो तब से मैंने जो वॉक शुरू किया, आई गॉट बैक टू माई साइकिलिंग, and even in lockdown I have been walking, I have been cycling, and I like doing a lot of work at home. I feel very shy to tell things to people. Even if I have a live with you today, I like to arrange my own things, mera touch up, mera pani, my camera, everything, you know, I like to prop up myself well. I'm not dependent on my team, though the team is very important. But yeah, being self-sufficient and looking forward to the day is something that keeps you going. So ये लॉकडाउन में भी you continue to walk? Did you step out? नीचे गए अपने कंपाउंड में and walk शॉक की? तो मेरी सोसाइटी बहुत अच्छी है. आई थिंक 1st of August तक हमें परमिशन नहीं थी नीचे जाने की, लेकिन जब से फॉर्मल परमिशन मिली है तब तक स्टेयरकेस थी, तब तक घर था चलने के लिए, लंजेस है, स्क्वाट्स है, स्किपिंग है. क्या? हाँ, you did all that, right? पता नहीं मेरे नीचे वाले नेबर क्या सोच रहे हैं लेकिन टपक 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 चालू है. So now let's go back a little. थोड़ा सा फ्लैशबैक पे जाते हैं. I started the show with an iconic movie का गाना, which is a cult classic. It's all our favorite. So any specific bad memory from the shooting of that movie? Not good. ये क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा हुआ? बहुत कम, लेकिन बहुत कम, क्योंकि हाउ आई विश मैं ऐसा कोई किस्सा बता सकती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. जो भी है वो बड़ी मजेदार यादें हैं. Any specific incident you remember with any of your co-stars or on the set or at the outdoor? Did you go outdoor for that movie? Yeah, we shot at Goa, at the fort. गोवा तो गए थे. हाँ, तो गोवा तो गए थे, और मुझे मेरा बर्थडे याद है, शिवा. One of my birthdays, I used to be really shy about celebrating my birthday. Till a couple of years back, when my friend Kedar Shinde told me that what is there to be shy? Why do you feel shy to receive blessings and good wishes? You know, you should feel enriched. What is there to feel shy and act like a coy person and say that मुझे बहुत शर्म आती है? But that time I used to feel very very shy. तो सुबह के कुछ 6 बजे थे, 6:30, and Preeti is Inta and I were supposed to travel in the same car to the location after our hair and makeup was done. So we were going together, and mobiles नए तो नहीं थे, लेकिन मोबाइल्स आए थे. इनकमिंग फ्री नहीं था शायद, तो मैं बड़ा सॉफ्टली उस टाइम, बिकॉज आई थिंक 2001, तो मैं हश एकदम प्रीति को डिस्टर्ब ना हो, बहुत सॉफ्टली बातें कर रही थी. तो काफी फोन आ रहे थे, कॉलेज के दोस्त, पूना के सारे रिलेटिव्स सब फोन कर रहे थे, हैप्पी बर्थडे सोनाली. तो मैं बहुत सॉफ्टली थैंक यू बोल रही थी. तो बीच में जब फोन नहीं था तो प्रीति ने पूछा, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या तुम्हारी जिंदगी में, अवार्ड वगैरह जीत लिया क्या, बता तो दो, क्यों थैंक यू बोल रही हो? तो मैंने कहा, प्रीति किसी को मत बताना. एंड शी वाज लाइक, क्या? मेरा बर्थडे है. तो शी सेड, पागल हो क्या? बर्थडे है तो कोई गिफ्ट विफ्ट नहीं चाहिए, पार्टी नहीं चाहिए, ऐसे क्या बता रही हो कि कोई
बहुत शर्म आती है जब लोग मुझे विश करते हैं. सो शी वाज लाइक, अरे तुम एक भूतनी टाइप हो यार, किसी को शर्म नहीं आती हैप्पी बर्थडे के विशेस रिसीव करने में. शी सेड ओके ओके चल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी. वी एंटर द सेट ऑन द फोर्ट. वी वर शूटिंग ऑन द फोर्ट दैट डे. I hear Zoya on the megaphone welcoming Preeti and I and wishing me that she's here, guys. Let us wish Sonali happy birthday. तो the entire unit wished me and मुझे लगता है कि तब से मैंने कभी ये नहीं बोला है कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट मत कीजिए, क्योंकि पूरे यूनिट ने सेलिब्रेट किया था. Oh wow, that's fun. And then about that song, did you realize that when you were working, it's going to turn out to be such a cult movie? Not at all, because you know it well, Shiva. When we are working, we are absolutely naive about the outcome of the project. We are just working in the film or whatever project it is with our utmost sincerity. तो कभी ये पता नहीं था कि इसका क्या होगा या ये कितना हिट होगा. मुझे याद है कि मेरा शो था पृथ्वी में, और जिस दिन रिहर्सल थी तो मैंने बोला था कि हाँ मैं आती हूँ, व्हाट टाइम आई हैव टू कम, बट रिलीव मी ऑन टाइम. हाँ मेरा 6 बजे शो है. तो मैं दोपहर में गई थी एंड आई थॉट इट विल बी अ 3 आवर सेशन. तो वो खत्म करके मैं 4 बजे पृथ्वी पहुंच जाऊंगी शो से पहले मेकअप वेकअप करने के लिए. आई वॉज वेयरिंग हील्स एंड आई वेंट टू सत्यम आई थिंक फॉर द डांस रिहर्सल. और मुझे बस बोला गया कि हील्स निकाल के एक बार ट्राई करो. तो मैंने कहा हाँ मैं तो हील्स निकालने वाली हूँ. कैड्स पहन के डांस रिहर्सल करने का दौर अभी तक शुरू नहीं हुआ था, तो मैंने हील्स निकाल दिए. तो मुझे फारा की टीम ने बताया कि रेडी. सो किसी ने बोला ये करो 1 2 1 2 3. आई सेड ओके. सो देन आई वाज टोल्ड कि हाँ ठीक है, थोड़ा हाथ अच्छे से करो, अप एंड डाउन, लेट्स डू इट विद द म्यूजिक. एंड कोई ट्यून बजी, मैंने हाथ ऊपर नीचे किए और उन्होंने एक दूसरे के साथ बात की, फुटवर्क सिखाया. और मैंने रिमाइंड करने के लिए, बिकॉज दे वर टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, और मैंने बोला कि आई हैव अ शो, हाँ आई एम हियर ओनली टिल 4 o'clock. सो दे सेड या ओके सी यू देन एट द शूट. सो आई सेड नो वी विल फिनिश द रिहर्सल ऑन टाइम. They said, yeah, we just wrapped the rehearsal and we were saying bye-bye, you can go. I said, that's it, हो गई rehearsal. And that was my rehearsal. मुझे लगता है कुछ 10 मिनटों की rehearsal थी. And cut to with Farah on the set. And Farah was brilliant. I think this idea came up when my costume designer, Arjun Bhasin, was, Farhan and Zoya, they have a lovely team, including Ritesh. They were bouncing ideas and this idea came up that what if they're watching a movie and they see themselves as the characters, and Farah designed it so well. Acha, so now tell me कि you have done movies in multiple languages including Marathi. कुछ लोग बोल रहे हैं कुछ मराठी में बोलिए प्लीज. आप कुछ मराठी. मी शिबा मराठीत बोलली तर मी धडाधड मराठी बोलायला सुरुवात करेन. नाही मला कळत होतं तुम्ही काय बोलते, तुम्ही बोला मी ऐकतो. तू किती गोड दिसतेस आज. मला तुझी हेअरस्टाईल दाखव जरा. बस लुक एट दॅट. बरं दिसली. You know you and me about our gajras and our cottons, na? Totally. We both love that. And मेरी एक मराठी बेस्ट फ्रेंड भी है, बोला बोला बोल रही है उसमें अंदर ऐकते. अंजलि बोलते कि तू ऐकते सांग. So you've done multiple language movies. You've done Marathi, which is your mother tongue, and Hindi, of course. And then you've done some South also, right? Your introduction was down south, है ना? मतलब हाँ, मैंने एक शुरुआत में पहली फिल्म की थी, that was हिंदी. चेलुवी नाम था, गिरीश कर्नाड सर के साथ. फिर मैंने तमिल में काम किया था before working in Marathi. Correct. So of all the languages, what is your best medium where you feel you come up with the best emotions? मतलब for you, which is the best medium or language, or doesn't it matter across? मुझे जरूर ऐसा लगता है कि सबसे पहले मराठी, क्योंकि वो मेरी मातृभाषा है. उसके बाद हिंदी,
क्योंकि ऐसा लगता है कि वो अब मैं हिंदी में सोच सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मराठी में सोचना पड़ता है। हाँ हाँ। तो हिंदी, मराठी, गुजराती मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ, बांग्ला समझ सकती हूँ। ये जो भाषाएं जो हिंदी के साथ कुछ रिश्ता जोड़ती हैं, करेक्ट, आई एम कंफर्टेबल इन दोज लैंग्वेजेस. व्हेन आई एम वर्किंग इन South Indian languages, I prepare little extra. करेक्ट, I am not as confident as I am in Gujarati or Bangla. I worked on an Italian film also, 2 Italian films. तब भी बहुत हार्ड वर्क करना पड़ा था, क्योंकि कभी कभी ना, जैसे मैंने अभी पॉज लिया, या कभी कभी हम फंबल करते हैं फिर भी आगे चले जाते हैं डायलॉग बोलते बोलते। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि हमें सोचना नहीं पड़ता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला। दूसरी भाषा में काम करने के समय ऐसा लगता है, एक्सेंट नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि लाइन तो नहीं गलत बोली मैंने, वर्ड्स तो आगे पीछे नहीं किए ना। तो वो एक कॉन्शियसनेस रहती है। तो हमेशा दूसरी भाषाओं में काम करने के समय मुझे लगता है कि फोकस, कंसंट्रेशन और एफर्ट ज्यादा लगता है, और नींद कम मिलती है। And then initially only for one of your Marathi movies, you ended up getting a national award mention or a jury award or something like that. So how was that experience? And matlab, did you expect it to happen? बिल्कुल नहीं, मुझे स्पेशल मेंशन नेशनल अवार्ड जब मिला तो ऐसा कोई अवार्ड होता है ये भी मुझे पता नहीं था। हाँ हाँ। और मैं बहुत ऋणी हूँ हमारे गवर्नमेंट की कि उन्होंने मुझे ऐसे मौके पे वो अवार्ड दिया था जब मुझे एनकरेजमेंट की जरूरत थी शायद। और बहुत अच्छा लगा था। विज्ञान भवन में ये पूरा माहौल देखने को मिला था, राष्ट्रपति जी से मुलाकात हुई थी, और एपीजे अब्दुल कलाम आजाद साहब के हाथों से मुझे नेशनल अवार्ड मिला था। और एक्टर्स लोगों की जिंदगी में ये मौका बहुत कम बारी आता है जब लगता है कि मैं हमारे देश को कुछ देश के लिए कुछ काम करूं। क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि एक्टर्स है तो ये खुद के लिए काम करते हैं, ये पैसे कमाते हैं, वो भी खुद रख लेते हैं, खुद के घर और गाड़ियां बनाते हैं। लेकिन मेरी काफी सारी फिल्में इंटरनेशनल अवार्ड फेस्टिवल्स में गई, फिल्म फेस्टिवल्स में गई है। yes. उसको पुरस्कार भी मिले। मराठी ना? नहीं, काफी सारे लैंग्वेजेस में। फॉर एग्जांपल दायरा नाम की फिल्म थी जिसके निर्देशक अमोल पालेकर सर थे। करेक्ट। तो उस फिल्म को बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला था फ्रांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में। और निर्मल पांडे को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था और मुझे बेस्ट एक्टर का, क्योंकि निर्मल उसमें ट्रांसवेस्टाइट था और मैं लड़का बनी थी। वाओ। तो अच्छा लगता है ना कि जब जब क्लैप्स बजती है तो कभी ना, हर एक फेस्टिवल में अलग तरीका होता है। कभी कभी हमारा तिरंगा लहराता है वहां पे। और लोग कहते हैं कि ये इंडियन एक्ट्रेस है। तो जैसा स्पोर्ट्स स्टार को लगता है कि उन्होंने इंडिया के लिए ट्रॉफी जीती है, हाँ, वैसा काफी बार हुआ है मेरी जिंदगी में। और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि मैंने हमारे तिरंगे को सम्मान दिलाया है, और ऐसा ही काम मेरे हाथों से होता रहे, ये मेरी इच्छा है। आपसे कोई पूछ रहा है हमारे ऑडियंस में से कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी रही है इन ऑल द वंस यू हैव डन, योर बेस्ट मूवी? आई डोंट नो हाउ एन एक्टर कैन से दैट, बट लेट्स ट्राई एंड आंसर। करेक्ट। तो कभी कभी हम रिविजिट करते हैं हमारा काम। तो हाल ही में मुझे ऐसा लगा कि मेरी एक फिल्म है मिशन कश्मीर। हाँ। वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम कभी कभी कहते हैं ना कि एक्ट्रेसेस को अच्छे रोल्स नहीं मिलते हैं, दे ओनली हैव टू लुक ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है कि मेरे करियर में मुझे ऐसी कंप्लेंट करने का मौका बहुत बारी नहीं मिला है। मुझे अच्छे कैरेक्टर्स मिले हैं, अच्छे किरदार मिले हैं। तो मिशन कश्मीर की जो नीलिमा खान थी वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। वो she has an essence of being a woman, being a family member, being a mother, being an Indian. तो मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं नीलिमा खान हूँ। I like that movie. And on a different note, I really like a Marathi film called Gulab Jam, which is about cooking, which is one of my passions.
तो वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है. तो out of all the my mama is here. Hi mama. नमस्कार आंटी. Out of all the directors you worked with, who according to you took out your best potential? मतलब I know you have a lot more left in you, but अभी तक तुमको क्या लगता है कि ये डायरेक्टर ने मेरे अंदर से अच्छे से निचोड़ा जो मैं केपेबल थी उसको, मतलब वो कि नहीं सोनाली बेटर करो, नहीं बेटर करो, and he got the best of you. Who was that? One director or directors? फरहान फॉर श्योर, क्योंकि मुझे लगता है कि दिल चाहता है मैं जो जॉनर मैंने किया था वो मैंने बहुत कम बार किया है. तो आई रियली लाइक, आई एम क्वाइट हैप्पी एंड जॉली पर्सन आई फील. जब मैं लिखती हूँ तो सेंसिटिव होती हूँ या ऐसा लगता है कि हम इंट्रोवर्ट हैं. लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से फरहान ने दिल चाहता है कि पूजा प्रेजेंट की है, that is something which I would like to relate, and that was really as a director I think it is his credit rather than my casting, and my performance goes to Zoya and Farhan of Dil Chahta Hai. Oh, amazing. So now tell me, you're married now over a decade. Tell me, how important is it to have a spouse who understands our line and for him to be supportive? क्योंकि तुमने काम तो कभी छोड़ा नहीं. After you got married also, बच्ची भी हो गई है, and still you continue to do very good quality work. So how important has that been as a part of your marriage, to have a spouse who completely supports your craft? I think I have realized it over the years, looking at companionships around me, looking at you and Akash, looking at so many friends who have strong careers. At the same time, they are very passionate about their family life. I have seen you during your Ganpati celebrations or your Diwali party, and the way you need your family in your social party also, or the way you respect the elders at home. That is something where I feel very touched. I feel this is what we live for. My award is not going to take care of my mom, or my car is not going to say to my mother-in-law that oh आपको दर्द हो रहा है मैं आपको मदद करती हूँ. या maybe my examples are wrong, but कभी कभी लगता है कि ये जो लोग हैं जो हमें bless करते